सभी का शुक्रिया। शुक्रिया क्यों, ये आप जरूर सोच रहे होंगे। वो इसलिए कि हमारे पिछले सभी एडिशंस को, खासतौर से जो हमारा क्रिकेट एडिशन रहा, उसकी हमें इतनी ज्यादा तारीफें मिली कि हम लोगों का दिल बाग बाग हो उठा। और हमारी आगे भी कोशिश रहेगी कि हम आपकी उन सभी प्रतिक्रियाओं का मान रखें और अच्छे से अच्छा आपको एक एडिशन फिर से पेश करें, है ना? बिल्कुल। So, to carry this legacy forward, we bring before you Coffee with Karma. Coffee with Karma is an experiment we have tried to interview one of our teams. Hope you like it. है ना भाभी? श्योर। आपकी बार एकदम नया सेगमेंट, क्योंकि हम एक आपको टीम से मिला रहे हैं जिन्होंने अपने जेसीआई में एक बड़ा इवेंट करने में अपनी पूरी मेहनत करी और कैसे उस मेहनत को एग्जीक्यूट किया, कैसे आपके सामने लाए, उसका ही एक इंटरव्यू है कॉफी विद कर्मा। Waiting for your reviews. ऑब्वियसली वो सबसे ज्यादा जरूरी है, क्योंकि आपके रिव्यूज जब हमको मिलते हैं तो हमें प्रोत्साहन और अच्छा करने का मिलता है। तो हमें आगे भी प्रोत्साहित करने के लिए अपने रिव्यूज जरूर दीजिए। तो फिर चलते हैं कहाँ, कॉफी विद कर्मा। कृष्णा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक ऐसा अस्पताल जो समझे आपका दर्द। कानपुर का पहला एकमात्र ऐसा अस्पताल जहां एक ही छत के नीचे होंगी सभी प्रकार की जांचें। मरीजों की सुविधाओं को देखते हुए 350 बेड का कानपुर का एकमात्र अस्पताल, शहर के बीचों बीच रेलवे स्टेशन और बस स्टेशन से मात्र 200 मीटर की दूरी पर। गाइड्स द्वारा 24 घंटे इमरजेंसी और एम्बुलेंस की सुविधा उपलब्ध। कृष्णा सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, 363 हैरिसगंज, टाटमिल चौराहा, कानपुर। Dear JCI Kanpur members, greetings to you all. JCI is a non-profit organization of young active members who are engaged and committed in creating impact in their communities. Firstly, I would like to thank our President Bharat Bhaiya and our First Lady Rupal Bhabhi and entire team of 2022 for giving me the opportunity of being wing chair coordinator. Now, I would like to share the events which are being held till now. Our 38th installation ceremony of JC Bharat Bhaiya and team was held on 9th January 2022, in which the guest of honor and installing officer JC Bhupendra Agrawal, ZVP Region A Zone 2 was invited, in which JCRT wing chairperson also took an oath. After that, in the month of January, Khichdi Pitran was held in Tilak Nagar, in which JC Shivang Gupta and our chapter contributed. After that, in the month of March, Women's Day gifts were distributed by JC Red Wing. After that, in the month of April, our super duper hit event, which became talk of the town, Big Boss, was organized in Moon and Mars Resort, in which 75 JC Reds took part and lived in Big Boss house. The PDs in this event were JC Red Shweta Bhabhi, JC Red Sudha Bhabhi, JC Red Hema Bhabhi and JC Red Shyama. After that, on occasion of Mother's Day in the month of May, donation of rupees 25,000 from the JC Red members were being given to a cancer patient, and 7 stretchers were given to Hallett Hospital, in which JC Red Richa Agrawal, JC Red Akansha Jain, JC Red Radhika Mundra and our chapter contributed for this noble cause. Thank you all for your support. Looking forward for some more events in this year. Yours, JC Red Wing Coordinator, JC Red Stuti Gupta. जय JCs, जय भारत। अब ट्रांसपोर्ट सर्विस हुई आसान, वर्मा रोडवेज रखेगा आपके सामान का पूरा ध्यान। वर्मा रोडवेज ट्रांसपोर्ट भी सुरक्षा भी। Umrah Technological Institute Polytechnic, established in 2011, approved by AICTE, MHRD or affiliated to Board of Technical Education UP Lucknow.
On 13th April, Jesiret Wing event Big Boss was conducted at Moons and Mars Resort. It was the most talked about event of the year. The curiosity and excitement was unmatchable. Jesiret gathered at Pandit in the morning and boarded a bus to reach the venue. Awaiting there was the Big Boss house with life-size hoarding of the one and only Salman Khan. 24 hours of bonding, fun and laughter and delicious food. An array of tasks and indoor as well as outdoor games had us on our toes. Meticulously planned with perfection, it was an indeed event which will be remembered for a long time to come. क्या हुआ जमाना तो है नौकर बीवी का तक दिना दिन तक दिना दिन तक दिना दिन। जब से हुई है शादी आंसू बहा रहा हूँ आफत गले पड़ी है। आज मुझे एक पार्टी में जाना है और मेकअप के लिए पार्लर सो एक्सपेंसिव, इसलिए ज्ञान आज मेरा मेकअप कर रहे हैं और मेरी पावरी हो रही है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ई कर्मा बिग बॉस एडिशन। आज हम आपको फिर से एक बार यादें ताज़ा करा रहे हैं जो हमारे विंग चेयरपर्सन के ने बिग बॉस कार्यक्रम कराया उसकी। और क्या बातें करें बिग बॉस की, बहुत ही खूबसूरत प्रोग्राम, बहुत ही अच्छी तरीके से एग्जीक्यूशन, और सभी पीडीज़ ने कितने एफ़र्ट्स करे, उनके साथ साथ उनके टीम लीडर्स ने कितने एफ़र्ट्स करे, अपनी अपनी टीम बनाई और सब ने आ कर के वहाँ पे हर तरीके से एंजॉय किया। नाइट आउट, अकेले अपने दोस्तों के साथ घूमना, बातें करना, मस्ती करना एक अलग ही आनंद रहा, जिसके लिए मैं थैंक यू करती हूँ अपनी WCP राधिका का। उन्होंने एक ऐसा मौका हम लोगों को सबको दिया। शिखा आपको इंट्रोड्यूस कराती हैं हमारी अपनी टीम को। प्लीज शिखा। आइए अब हम मिलते हैं JCI कानपुर के इतिहास में पहली बार हो रहा बिग बॉस के रचयिता टीम से। तो हमारी टीम में सबसे पहले आइए हम मिलते हैं हमारे चैप्टर की फर्स्ट लेडी जेसरेट रूपल पारेख, हमारी विंग चेयरपर्सन जेसरेट राधिका मुंद्रा, और हमारे बिग बॉस के एक्सपर्ट पीडीज जेसरेट हेमा गुप्ता, जेसरेट सुधा जिंदल और जेसरेट श्वेता गुप्ता से। हमारी टीम WCP से जो हमारी राधिका मुंद्रा जी हैं कि आपके दिमाग में ये बिग बॉस का आइडिया आया कैसे? देखिए, जब हम कोई भी इवेंट के लिए सोचते हैं तो बहुत से प्लान्स चलते हैं, हम लोग बहुत सी थीम डिस्कस करते रहते हैं। और सबसे पहले जब मैं फेब में एक इवेंट कर रही थी और ड्यू टू कोविड पोस्टपोन हो गया था,
तो हेमा भाभी वॉज माई पीडी, तो यहीं से हमें ये थॉट क्लिक हुआ। फिर जब मैंने सुधा भाभी से डिस्कस किया और देन शी वॉज इवन वेरी ईगर कि हम इसे ओवरनाइट क्यों ना टर्न अप कर ले, तो ऐसे करके ये इवेंट प्लान अप हुआ। वेरी गुड। तो हम पूछना चाहेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन अपनी सुधा और हेमा से कि जब ये आपको बेस राधिका से मिला तो इसको किस तरीके से आपने डे एंड नाइट में इसको कन्वर्ट करके और कैसे इसको एग्जीक्यूट करने को सोचा और बाकी के पीडीज को कैसे अपने साथ कोलैबोरेट किया? बेसिकली प्रोजेक्ट काफ़ी बड़ा था, ओवरनाइट का प्रोग्राम था, तो ये था कि एटलीस्ट 4 to 5 पीडीज होनी चाहिए जिससे कि वर्किंग बहुत स्मूथली और अच्छे से हो सके। तो हमने, हेमा ने, राधिका ने, ये हुआ कि हम लोग 4 टीम लीडर्स भी बनाते हैं जिससे कि वो जेसीरेट्स को उनको कोऑर्डिनेट कर सके, उनको इंक्लूड कर सके, ज़्यादा से ज़्यादा मेंबर्स हमारे इवेंट के पार्टिसिपेट कर सकें। तो हमने टीम लीडर्स बनाए, तो उसके लिए राधिका ने गीता से, सुविधा से, मोनिका से और विनीता से बात की और उन्होंने बहुत बढ़ चढ़ के आगे पार्टिसिपेट किया और टीम मेंबर्स से बहुत ही इंटरेस्टिंग वे में सबने अपने ग्रुप में मेंबर्स को बनाने की पूरी कोशिश की। मैं श्वेता जी से पूछना चाहूँगी कि वेन्यू का आइडिया कहाँ से आया? ऑलमोस्ट ये जो मैंने तो ये प्रोजेक्ट बहुत लेट ज्वाइन किया। ऑलमोस्ट काम ये राधिका और सुधा, हेमा और श्यामा ने ही डन कर दिया था। मुझे तो बहुत लेट में उन्होंने ज्वाइन करा। अब क्या किया, क्या सोच के किया, मुझे नहीं पता। कोई बात नहीं, देर है लेकिन दुरुस्त है और आपका आना भी बहुत सुखद रहा। तो हमारी फर्स्ट लेडी का इसमें क्या कंट्रीब्यूशन है? मुझे जब राधिका ने बताया कि हम ये बिग बॉस करना चाहते हैं तो मुझे आइडिया उसका बहुत अच्छा लगा और बहुत इनोवेटिव लगा। और पर यही सोचा कि वेन्यू में क्या किया जाए कि जिसमें सब लोग एक साथ रह सकें। जब हम लोगों ने वेन्यू देखा तो वो हमारे बिग बॉस थीम के लिए एकदम परफेक्ट था। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जेसरेट हेमा गुप्ता से। जैसे ही आप लोगों ने ये प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किया था, इसकी एक दिन के अंदर ही बहुत हाइप हो गई थी। मतलब आई थिंक JCI कानपुर के इतिहास में दिस हैज बीन वन ऑफ द मोस्ट हाइप प्रोग्राम्स ऑफ द विंग। सो इसके लिए आपको क्या चेंजेस लाने पड़े अपने इनिशियल प्लान में और उसके लिए आपको एग्जीक्यूट करने में क्या चैलेंजेस फेस करने पड़े? हाँ, जैसा आपने कहा ना कि ये बहुत हाइप कर गया था। एक्चुअली ये हाइप प्रोग्राम ही इस तरह का था कि ये प्रोग्राम ही इस तरह का था कि लोगों की उम्मीदें इससे बहुत ज़्यादा थी। सबसे पहला सवाल उस समय क्रिकेट प्रैक्टिस चल रही थी कि आप कहाँ लेकर जाओगे। बिग बॉस वाले तो मुंबई में ले जाते हैं कहीं पर किसी फार्म हाउस में या ऐसा, तो हर चीज़ के लिए एक्सपेक्टेशंस इतनी ज़्यादा थी कि हमें उनको पूरा करने के लिए वाकई बहुत प्लानिंग्स करनी पड़ी। जितने भी प्लान्स पहले किए, एक रात किए, अगली रात वो चेंज करिए, ये नहीं काम करेगा, दूसरा कुछ इससे बेहतर करना है, इससे बेहतर करना है। ऐसे करते करते हम लोग 0 से 10 पर पहुँचे। 0 से 10 पर पहुंचे, बट इंडीड इट वाज अ वेरी एंटरटेनिंग प्रोग्राम। एंड वन क्वेश्चन आई हैव फॉर जेसरेट श्वेता गुप्ता। आपने अभी मेंशन किया कि आपने ये प्रोग्राम बहुत लेट ज्वाइन किया, पर आपने ज्वाइन करने के बाद कुछ इनपुट्स ऐसे डाले होंगे जो सिर्फ आपको हाईलाइट करते होंगे। वो क्या इनपुट्स थे? वो तो आप लोग बताओगे भाई कि हमने क्या ऐसा डाला। लेकिन वो तो आप, हमें नहीं मालूम क्योंकि हम लोगों ने तो प्रोग्राम ओवरऑल देखा। हमने तो ओवरऑल एंजॉय हमें क्या मालूम कि उसमें आपने मतलब क्या अपना इनपुट किया था। वो ये आपको बहुत अच्छी तरह से हमारी चेयरपर्सन बताएंगी कि इसमें मेरा क्या सीनियर मेंबर है, बहुत एक्सपीरियंस्ड है। जिस पोस्ट में मैं आज हूँ, सालों पहले वो रह के छोड़ चुकी हैं और अभी तो मैं बहुत छोटी हूँ आप सबसे सीख रही हूँ। बट हाँ, काफ़ी आइडियाज़ भाभी ने दिए। जैसे जो हमारे बिग बॉस में ग्लिज एंड ग्लैम पार्टी हुई थी, उसका पूरा श्वेता भाभी ने ही देखा था। एवरीथिंग जो हमारी डांसर्स आई एंड एवरीथिंग, जितना भी हमारे जेसीरेट्स ने एंटरटेन किया, एंजॉय किया वो पार्टी, दैट वाज ऑल कम्प्लीटली द एफर्ट्स ऑफ श्वेता भाभी। बिग वाकई में ग्लिट्स एंड ग्लैम जो हमारी पार्टी थी, उसमें हम सभी जेसीरेट्स ने बहुत एंजॉय किया और सबने अपने पसंदीदा कपड़े पहन करके और फुल्ली एंजॉय हो करके डांस एंड नाइन बिल्कुल पूरा परफेक्ट। लेकिन एक चीज़ मुझे पूछनी है कि सलमान खान के आप लोगों ने सिर्फ पोर्ट्रेट लगा रखा था,
उनको फिजिकली क्यों नहीं लेकर के आए और लाए, तो आप ये बताइए। कोशिश रहेगी कि बिग बॉस 2 में ये आपकी उम्मीद हम लोग पूरी कर सकें। डेफिनेटली। अच्छा तो ये बताइए उनकी वॉइस कहाँ से आप लोगों ने चुराई? जैसा कि रूपल भाभी ने कहा, सलमान खान शायद अगले सीज़न में आएंगे, तो फिलहाल इस सीज़न में सलमान खान को कहीं ना कहीं तो लाना ही था, तो हमने उनकी वॉइस को क्रिएट किया। और चैप्टर में हमारे अजय अग्रवाल भैया किसी सलमान खान से उनकी वॉइस कम नहीं है, या बिग बॉस की उनकी एक आवाज़ गॉड गिफ्ट है, और बहुत ही एक बढ़िया तरीके से उन्होंने हमारी हर चीज़ को पोर्ट्रे किया, जैसा हमने सोचा था बिल्कुल वही चीज़ वहाँ पर निकल कर आई। तो थैंक यू अजय भैया, आपके बिना शायद बिग बॉस का वो सेगमेंट पॉसिबल नहीं था। अजय भैया के लिए तालियां। शिखा आप क्या पूछ रही थी? मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन था भाभी, वहाँ पे जो हमने गेम्स खेले थे किससे वो बहुत पूछे? मुझसे? एंटरटेनिंग थे। आपसे क्यों पूछेंगे? आप तो ये बताइए गेम्स एंटरटेनिंग थे कि नहीं थे, बिल्कुल, स्पेशली वो बिल्कुल। प्रॉप राउंड। Prop तो माय नेक्स्ट क्वेश्चन है सुधा से कि सुधा वो प्रॉप राउंड का आइडिया तुम लोगों को कहाँ से आया, और उसमें जो एक्टिविटीज थी वो तुम लोगों ने इतनी एंटरटेनिंग एक्टिविटीज कैसे डिजाइन करी? बेसिकली हमें लग रहा था कि एक दिन का इवेंट है और हमें जो भी कुछ भी जो एक्टिविटी करेगा वो तो एंजॉय करे ही, साथ में जो भी हमारी ऑडियंस बैठी है वो भी वो एंजॉय करे। तो हम लोग का शुरू से हमारा हेमा का इसमें गेम्स में ज़्यादा फोकस था कि एक एक प्रोग्राम मेरा यही मन था कि बस ये फोकस करना कि वो भी एंजॉय करे और हमारी ऑडियंस भी एंजॉय करे। मतलब ये नहीं कि वो गेम खेल रहे हैं तो वी आर बिजी टॉकिंग। तो हमारा बेसिकली एक एक गेम का यही एक थीम, मोटिव ही यही था कि ईच एंड एवरीबडी शुड एंजॉय। आपने इतने फनी, इतने क्रिएटिव गेम्स सोचे कैसे? बेसिकली एक जो भी हमारे गेम्स प्लान थे उसमें हम लोग का मेन मोटिव यही था कि जो भी गेम खेल रहा है वो और हमारे और जितने भी मेंबर्स हैं वो सब उस गेम को एंजॉय कर सकें। इसलिए मेन फोकस हम लोग का यही था कि जो खेल रहा है वो भी एंजॉय करे और जो भी देख रहे हैं वो भी एंजॉय करे। और वो दिन हमें ऐसा बनाना था कि मेमोरेबल रहे, कि ईच एंड एवरी पर्सन घर जाके यही बोले कि हमारा एक एक मिनट वर्थ था कि हम बिग बॉस में गए। बिल्कुल। और ये सिर्फ JCI में ही ये बिग बॉस पॉपुलर नहीं हुआ था, ये अदर चैप्टर्स में भी इतना पॉपुलर हुआ था कि लोग पूछ रहे थे कि आप लोगों का ये बिग बॉस इवेंट जो था वो बहुत अच्छा था। तो कहीं ना कहीं तो ये चर्चा का विषय बना हुआ था। चर्चा का विषय भी हमारे जेसीस लोगों के बीच में ही था, आज भी है। आज भी है। और उनकी खास डिमांड रही है हम लोगों से कि आप लोगों ने क्रिकेट जिस तरीके से दिखाया, एक एक उसके पल को कैप्चर किया, मुझे बिग बॉस के एक एक पल का अनसेंसर्ड वर्जन मुझे चाहिए कर्मा में। तो आप लोग क्या इस चीज के लिए एग्री है? व्हाई नॉट? जब इतना वर्थ गोइंग इवेंट था तो व्हाई नॉट? सबको देखना चाहिए और उसको कर्मा में एंजॉय करना चाहिए। एंजॉय करना चाहिए। हमसे जब एक प्राइवेट पार्टी में हमसे जेसी ने रिक्वेस्ट करी, हमने उनसे कहा वी आर रेडी टू गिव यू एन अनसेंसर्ड वर्जन, बट हमारी शर्त ये है कि जब आप लोग बाहर जाएंगे हम दोनों को साथ में लेके जाएंगे ताकि हम आपका इवेंट कवर कर सके और हमें भी अनसेंसर्ड वर्जन चाहिए आपका। एक्चुअली जब जाते हैं अकेले, उन लोगों की पार्टी का हमारे पास कुछ नहीं होता। जितना हमने एंजॉय किया, वी एब्सोल्युटली हैड अ लिटिल डांस जिसकी हमें जरूरत नहीं थी क्योंकि हम खुद में इतना एंजॉय कर रहे थे। एंड जो हमारी जेसीनेट्स डांस कर रही थी, दे वर मच बेटर देन एनी डांसर्स। ये जेसीज बाहर जाके भी उतना एंजॉय नहीं कर सकते जो हमने कर लिया। ये मतलब आई एम गिविंग एन ओपन चैलेंज टू ऑल द जेसीज। करके दिखाओ। हाँ, करके दिखाओ। वी ऑल आर डिमांडिंग, आप करके दिखाओ जो हम लोगों ने किया वो आप हम लोगों को खुलेआम करके दिखाओ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों से, जैसा कि अभी रूपल भाभी ने कहा कि बहुत सारे अदर चैप्टर्स ने पूछा कि आप लोगों का प्रोग्राम बहुत अच्छा हुआ, तो आप लोगों के पास क्या फीडबैक रहा और इसका क्या रिजल्ट आया, लोगों की क्या क्वेरीज आई? हाँ, ये सबको जानना बहुत ज़रूरी है।
एक्चुअली मेरे पास पर्सनली मैसेजेस आए और कॉल्स आए, क्या ये वही बिग बॉस है जो टीवी पर होता है और इसकी स्क्रीनिंग कहाँ पर हो रही है, हम कैसे इसमें एंट्री कर सकते हैं और क्या इसकी एंट्री फीस क्या है, किस तरह से, इस तरह के सवाल आए मेरे पास। वेरी गुड। और साथ में मैं कुछ अदर क्लब्स की भी मेंबर हूँ, वहाँ से उनके प्रेसिडेंट्स के भी मेरे पास पर्सनली कॉल आए कि आपका ये प्रोग्राम वाकई बहुत ही सक्सेसफुल रहा, थ्रू सोशल मीडिया उन्होंने ये चीज़ें देखी। मतलब हमारे प्रोग्राम की चर्चा पूरे कानपुर और कानपुर से बाहर, मतलब कहीं भी जाओ, किसी भी मीटिंग में जाओ या किसी से मिलो, केवल बिग बॉस की ही चर्चा हो रही थी। उस समय तो बिल्कुल यही था। हाँ, ये उस समय यही था, महीनों तक ये चर्चा चलती रही। आज 2 महीने बाद भी हम कितने एंथुसियास्टिक थे। एग्जैक्टली, बिग बॉस नाम से ही मैं सोचूं कि बिग बॉस तो मुंह पे एक बार हंसी आ जाती है, हंसी आ जाती है। तो मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि एज अ फर्स्ट लेडी आपको लगता है कि इसको चैप्टर लेवल में भी कराना चाहिए, जैसे कि बहुत पहले हमारे यहाँ जेसीज में होते थे सिंगिंग कॉम्पिटिशन या डांस कॉम्पिटिशन्स, जिसमें बाहर से हम फॉर्म भरवाते थे बच्चों के और वो अपना टैलेंट दिखाते थे, और उसके जो विनर्स जो रहे हैं कई बार टीवी लेवल तक पहुँचे हैं। जैसे कि जब हमारे हस्बैंड प्रेसिडेंट थे राकेश जी, तब उस समय के जो सिंगिंग कंपटीशन का जो विनर था अली, वो सारे गामा में भी विनर रहा और जा कर के आगे फिर उसने फिल्म इंडस्ट्री में भी एक आध बार अपना वॉइस को दिया। तो क्या इस तरीके से आप एक इवेंट कराना चाहेंगी कि इसके जरिए बिग बॉस में लोग जा सके फिर से? ये बिग बॉस सीजन 1 था, हम बिग बॉस सीजन 2 के बारे में भी सोच रहे। अगर मुझे मेरी साथी श्वेता, सुधा, श्यामा और हेमा, साथ में राधिका, सब लोग साथ में मिल जाएंगे तो फिर से एक बार ये इवेंट हो सकता है। नहीं, ये इवेंट मेरा वो मतलब नहीं था कि आप पब्लिक रिलेशन PR मतलब ना, हम एक PR प्रोजेक्ट के तौर पे हम कह रहे हैं कि दिस इज नॉट फॉर आवर मेंबर्स, हम इसको मतलब पब्लिक के लिए क्या करने को हम सोच सकते हैं। बिल्कुल सोच सकते हैं। तो हम इसके लिए अभी से हम चाहते हैं कि आप इसके ऊपर कुछ ध्यान दें और प्रिपरेशन करें। बिल्कुल, क्योंकि जब अगर इतना डिमांड में है तो आई थिंक इसको करना चाहिए। एग्जैक्टली। अब चूंकि हमने ये सोचा कि हम इसको पब्लिक लेवल पे लेके जाएंगे, पर अगर हम इसको, ये तो जेसरेट विंग का प्रोग्राम था, अगर हम इसको अपने चैप्टर लेवल पे लेके जाते तो सुधा आप बताइए, आप इनमें कौन सिलेक्टेड 14 मेंबर्स में से कुछ मेंबर्स के नाम लीजिए जिनको आप एज अ पार्टिसिपेंट देखना चाहेंगे। जैसे जो बिग बॉस आते हैं उसमें सिलेक्टेड मेंबर्स होते हैं, तो अगर हम उस फॉर्मेट पे लेके जाएं और हम सिलेक्टेड मेंबर्स लें तो आप किन-किन मेंबर्स को उसमें एज अ पार्टिसिपेंट जरूर देखना चाहेंगे? आई थिंक बहुत अपने यहाँ तो बहुत टैलेंटेड लोग हैं, बहुत लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं, लेकिन आई थिंक वी शुड गो फॉर अ गुड ऑडिशन फॉर दिस। लेकिन ऑडिशन इज ओके, लेकिन आई थिंक एक्चुअली टैलेंट के साथ साथ यहाँ पे हमें ड्रामा भी चाहिए, क्योंकि थोड़ा मसाला चाहिए ड्रामा। तो कुछ ऐसे नाम होते हैं ना कि जो हमें स्ट्राइक करते हैं, जिसमें जेसीज एंड जेसीरेट्स बोथ। हाँ, जेसीरेट बोथ। दिस इज एन ओपन क्वेश्चन फॉर ऑल। किसी के जो भी नाम स्ट्राइक करे, पहले सुबह कुछ नाम तुम बोलो। आई थिंक विशाल भैया, दीपक भैया, अखिल भैया, इवन जिंदल भैया, इवन जिंदल। तो जैसा कि अभी ये हमारे सामने आया कुछ निकल करके कि बिग बॉस जो था उसमें थोड़ा सा ड्रामा वगैरह हुआ, और जो ओरिजिनल हमारा जो सलमान खान वाला बिग बॉस है उसमें भी ड्रामे की कहीं कमी नहीं है। बिग बॉस का मतलब हो गया है एक कंट्रोवर्सी। अगर बिग बॉस का नाम कहीं भी आता है सामने तो दिमाग में सिर्फ आता है ड्रामा, फुल ड्रामा और कंट्रोवर्सी एंड कंट्रोवर्सी एंड कंट्रोवर्सी। तो मुझे लगता है कि हमारा ये बिग बॉस भी कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत कंट्रोवर्सी का शिकार रहा। कुछ हमारे जो मेंबर्स हैं वो आप लोगों के निर्णयों से जो रहा, आपके डिसीजंस उनसे खुश नहीं रहे। उनको लगता है कि आपके जो भी आपने डिसीजन लिए, जो भी विनर्स या समथिंग कुछ भी, वो सही नहीं थे, उसमें कुछ पार्शियलिटी हुई। क्या ऐसा था? ऐसा कैसे होगा बताइए? इट इज़ नॉट ओनली अ पर्सन, इट्स अ टीम। ये टीम वर्क होता है। जब हम कोई भी इवेंट उठाते हैं, स्पेशली बिग बॉस, इट वॉज रियली अ वेरी हार्ड वर्किंग इवेंट जिसमें 25 डेज हमें लगे वर्किंग का,
और इतने बड़े इवेंट के लिए हमने मार्किंग का भी सब पूरी प्लानिंग कर रखी थी। डे 1 जब हमारे ऑनलाइन इवेंट स्टार्ट हुए थे तो उसके सुधा भाभी, श्वेता भाभी मार्किंग्स रिकॉर्ड कर रहे थे एंड वी हैव अ प्रॉपर मेंटेनेंस ऑफ दैट कि कौन सी टीम विन कर रही है। एंड उसके बाद जो भी हमारे वहाँ इवेंट्स हुए थे सेम डे, उसमें भी ऑलमोस्ट तो हमने सबको बराबर ही दिए थे, लेकिन जो भी इवेंट्स हुए जैसे एक टैटू गेम में ही रूपल भाभी ने मार्किंग की थी, इट वाज इन फ्रंट ऑफ एवरीवन। तो आई थिंक कंट्रोवर्सी की कोई बात ही नहीं होनी चाहिए। बाकी मैं मेंबर्स से ये कहना चाहती हूँ कि जब आप कहीं भी जाओ देन यू शुड ऑलवेज रिस्पेक्ट अ टीम। अगर टीम ने कोई डिसीजन दिया है तो मुझे पर्सनली ये लगता है कि हमें उसको रिस्पेक्ट करना चाहिए। आफ्टर ऑल वी आर वन फैमिली JCI। ऑफ कोर्स वी आर अ फैमिली, डेफिनेटली। लेकिन फिर भी आप लोगों का जजमेंट क्राइटेरिया क्या रहा, उसमें क्या कहीं कुछ ऐसी बात हुई जिसकी वजह से सब लोग उसको टेक ओवर नहीं कर पाए और मतलब उसको या आगे चल के हमें ऐसा कुछ क्लियर कर देना चाहिए कि हमारा जजमेंट क्राइटेरिया क्या है और किस एक्टिविटी के हमें बराबर पॉइंट्स मिलने वाले हैं और कौन सी एक्टिविटी एक कंपटीशन है। एक्चुअली ये आप लोगों का कंसेप्ट क्लियर नहीं था भाई कि हम लोग जो हर एक्टिविटी को एज अ कंपटीशन कंप्लीट कर रहे थे उस समय आपने सबको इक्वली मार्किंग कर दी। ऐसा नहीं था, ऐसा नहीं था। इसमें देखिए फर्स्ट डे से जब हम लोगों ने जब हमने टीम बनाई थी तभी हमने रूल्स दिए थे और सारे पॉइंट्स क्लियर कर दिए थे। कैप्टन्स के पास सारे पॉइंट्स दिए गए थे कि इस कैटेगरी में आपको ऐसे ऐसे पॉइंट्स मिलेंगे। तो जो हमारी जो फर्स्ट एक्टिविटी थी, जो सेट ऑफ गेम्स था, उसमें आपने कहा कि जैसे सबने बराबर सबने अच्छा परफॉर्म किया तो आपने सबको बराबर मार्क्स दे दिए, बट इट वाज अ कंपटीशन। See Bhavi, here I would like to say something. Everybody have come up to enjoy. Okay. 4 लीडर्स आए, we asked them कि आप अपनी टीम को इंट्रोड्यूस करो and you perform. The performance was so loving, so beautiful. Each team member की, how can just we give the points की 15, 10, 5? We cannot. Even we were so much overwhelmed कि हमें हमारा मन था कि हम चारों को बराबर पॉइंट्स दें। नहीं, मुझे मेरा केवल हम लोग का उद्देश्य यही था कि हमें केवल एंटरटेन करना है। हमें ये उद्देश्य नहीं था कि हमें उसमें कंपटीशन डालना। मतलब लेकिन आपका पहले दिन से ही उसमें ये चीज तो थी ना कि हम केवल हम लोग को जो कॉन्सेप्ट हम लोग ने किया, हम लोग विनर देंगे। जब जहाँ एक कोई चीज का विनर देने वाली जब चीज होती है तो कहीं ना कहीं कॉम्पिटिशन की भावना आ जाती है। हम लोग का बस जो उद्देश्य था इस प्रोजेक्ट का, जो हम लोग टीम लीडर इसलिए बनाया कि हम लोग को ज्यादा से ज्यादा मेंबर्स को इन्वॉल्व कर सकें। बस मेरा एक ही यही उद्देश्य था, इस वजह से ये। लेकिन आपने ज्यादा से ज्यादा मेंबर्स को आप इन्वॉल्व कर सके, ये मानते हैं कि आपका टीम लीडर बनाने का ये उद्देश्य था। लेकिन जब आप कहीं भी किसी चीज को आप एज अ कंपटीशन आप दिखाते हैं कि हाँ हम मार्किंग कर रहे हैं, तो हर टीम जो है वो अपना, हर लीडर जो है वो अपने अपने लेवल पे अपना एफर्ट बेस्ट करता है। तो ऐसा नहीं है कि किसी ने कुछ ना कुछ तो बढ़िया किया होगा, किसी ने एक्स्ट्रा एफर्ट डाला होगा। ऐसा नहीं लगता कि उसमें कुछ ना कुछ एक्स्ट्रा पॉइंट देने चाहिए। अगर उसी ऐसा वजह नहीं से होगा विनर्स तो निकले कोई यार। विनर कैसे बनता? भाई उसी वजह से तो विनर्स निकले ना। नहीं, लेकिन उस समय तो आपने मान लीजिए सबको इक्वली पॉइंट दिए। ये जो विनर्स वहां से ऐसे सबने नहीं दिया। हम सातों लोगों ने मिलकर एक जजमेंट शीट का क्राइटेरिया तैयार किया था। अब सपोज आप DID देखते हैं, डांस इंडिया डांस, उसमें 10 बच्चे डांस करते हैं और उसमें से कोई 3 या 4 ऊपर निकल कर आते हैं, तो हम लोग को घर बैठे करता है अरे वो भी तो अच्छे थे, उनको क्यों नहीं किया। तो हम वो चीज़ वहाँ नहीं करना चाहते थे। आपको वहाँ एंटरटेन करना है, आपको डांस आता है नहीं आता है, एक्टिंग आती है नहीं आती है, आप बस एंटरटेन करिए पब्लिक को। वो एंटरटेनमेंट पार्ट को हमारे कुछ मेंबर्स कंपटीशन पार्ट में लेकर जा रहे हैं, जो कि हमारा उस जगह कंपटीशन नहीं था। मेरा कंपटीशन था खतरों के खिलाड़ी में, मेरा कंपटीशन था हाउसी में, ऑनलाइन टास्क में, और भी जो भी हमने सिचुएशन। हाँ, तो जो हमारा स्कोरिंग पार्ट था, उस स्कोरिंग पार्ट से जो टीम लीड करी वही विन करी। ओके, तो आई थिंक आपके इन सब सवालों से, इन जवाबों से, जो हमारे कुछ मेंबर्स हैं जिनको लगता है कि ये सही नहीं निर्णय रहे थे, उनको जरूर सुविधा मिलेगी
आपकी बातों को समझने में। अगली बार से अगर कुछ ऐसा होगा तो हम इस चीज को ध्यान में रखेंगे कि देखिए हमारे लिए भी पहली बार था, गलतियां हमसे भी हो सकती हैं। कई चीजें हमने जो सोची, ऑनलाइन टास्क के समय की बात बता रहे हैं, हमने सोचा ये बहुत स्मूथली चलेगा, लेकिन लोगों के दिमाग हमसे 10 गुना आगे चल रहे थे। बिल्कुल। तो वो हमें नहीं पता था कि किस तरह की कॉम्प्लिकेशन प्रोग्राम हम लोग ने 1 वीक के लिए प्लान किया था। हम लोग को बीच में कट शॉर्ट करना पड़ा कि इतना ज्यादा कंपटीशन लेवल बढ़ रहा था और हाई हो रहा था और लोग इतना इन्वॉल्व हो रहे थे कि अब जब ऑनलाइन कंपटीशन की बात चल ही रही है तो चूंकि इट वाज अ जेसे ट्विन का प्रोग्राम, बट ये इतना हाइट प्रोग्राम था, ऑनलाइन में हमारे हस्बैंड्स भी इन्वॉल्व थे। तो एवरी मॉर्निंग माय हस्बैंड यूज्ड टू आस्क मी, टास्क आ गया? हमारी जरूरत तो नहीं है, हम दुकान जाएं कि रुक के जाएं? आप ये बताइए कि आपने हस्बैंड का इन्वॉल्वमेंट, बहुत एक्साइटेड थे। हस्बैंड और फैमिली का जो आपका इन्वॉल्वमेंट वीडियो आया था वो तो बहुत ही गजब का था। मैं डेफिनेटली उसको जरूर आपके साथ कर्मा में शेयर करूंगी। नहीं, अगर आप देखिए तो पहले दिन की टास्क है, हमने 5 घंटे का टाइम दिया। हमने मेंबर का इंटरव्यू देखा तो अगले दिन उसको आधा घंटा कर दिया और फिर तीसरे दिन बहुत ही कम टाइम दिया था ताकि हम भी जजमेंट में उतना मतलब जो प्लानिंग थी, बेसिकली हम लोग को हर दिन अपनी प्लानिंग चेंज करनी पड़ रही थी मेंबर्स की वजह से। रोज हम लोग मीटिंग कर रहे थे, रोज ऑनलाइन मिल रहे थे कि अरे ये क्या हो रहा है, अरे ऐसे कैसे, फिर मतलब जिससे कि कोई भी नाराज ना हो, बेस्ट हम अपना दे सके। अब राधिका एक चीज बताओ कि तुम्हारा जो फर्स्ट इवेंट था एज अ विंग चेयरपर्सन, दैट हैज बीन सुपर डुपर सक्सेसफुल, राइट फ्रॉम वेन्यू सिलेक्शन टू फूडिंग टू एंटरटेनमेंट टू गेम्स एंड टू योर पीडीज, एवरीथिंग वाज टॉप क्लास एंड परफेक्ट टू द एग्जीक्यूशन। अब नेक्स्ट आपके क्या प्लान है और आप अपने पूरे साल की एक्टिविटीज के थ्रू इस लेवल को कैसे मेंटेन रखेंगे? True said, first event was a big hit and people are really expecting a lot out from me. And waiting also. Even, actually. So we are planning for a workshop and then we are planning for an event with JJ Wing. Even we would plan a cultural evening for JC Reds. I think that's enough. But that's enough, that's okay, but that is what every other chapter has been doing. My request to you is कि जैसे आपने बिग बॉस प्लान किया and you have become a trendsetter, a benchmark for everybody, कुछ ऐसा लाइए, कुछ यूनिक कि जिससे सारे चैप्टर्स फिर हमारी सर्च मारना शुरू कर दें कि हम things are in process, things are in process, and you have good support from the entire team. So we wish exactly. you all the I best have for the lovely team and I have few words for my team. If with your permission. बिग बॉस में मेरी टीम ने मुझे बहुत सपोर्ट किया एंड आई एम रियली थैंकफुल टू देम। श्वेता के सानिध्य में, सुधा के ज्ञान रस में, हेमा के दृढ़ इरादों से, श्यामा की लगन में पिरोया एक सपना मैंने, साकार किया जिसको इन्होंने, बनाया एक रूपलमय घर जिसमें रहे खुशी खुशी सब, पाकर साथ स्तुति का लग गए इसमें 4 चांद। आप सभी का मेरा धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच। बहुत बढ़िया राधिका, आपने बहुत अच्छी कविता अपने पीडीज और अपने साथियों के लिए लिखी और मैं आप सभी के साथ बहुत ही शुक्रगुजार हूँ कि एक बहुत सुंदर शाम हमारे साथ आपने बिताई और कुछ सवालों के जवाब हमको मिले और मुझे उम्मीद है कि हमारे जो मेंबर्स हैं उनको भी अपने सवालों के, बहुत सारे सवालों के जवाब मिल गए होंगे। आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू। राधिका, आपकी टीम के साथ तो हमारा आपका इंटरव्यू हो चुका है और आपने अपनी टीम के लिए बहुत कुछ बताया हमें, लेकिन मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी कि ऑन द स्पॉट जो आपके साथ सपोर्ट कर रहे थे, आपका पर्दे के पीछे से क्या सपोर्ट रहा? बिल्कुल, बैक टीम बहुत ज़्यादा सपोर्टेड थी, जिनके बिना तो ये इवेंट प्लान अप होना ही बहुत मुश्किल था। सबसे पहले वेरी थैंक्स टू भरत भैया, जिन्होंने मेरे एक बार कहने पे कि आई एम विद यू, आप प्रोसीड करिए, ही ऑलवेज ट्रस्टेड इन मी एंड उन्होंने इस प्रोग्राम के लिए परमिशन दी। एंड अखिल भैया एंड नितिन भैया, जो भी हुआ उन लोगों ने सब वे में वो हेल्पफुल रहे। एंड इवन स्पेशल थैंक्स टू
दीपक भैया जो एक कॉल पे ही वॉज ऑलवेज देयर, वेन्यू बुकिंग से लेके हमारे क्रिएटिविटी वर्क कुछ भी होता, एनीथिंग, अगर मैं कहीं भी फंसती तो ही वॉज ऑलवेज देयर फॉर मी. तो थैंक यू सो मच. एंड इवन थैंकफुल टू आर ऑल द जेसीज जिन्होंने पूरा एक दिन घर संभाला, बच्चे संभाले. श्योर. और हम जेसी रेड्स को पूरी एक दिन की आज़ादी दी. ये बात तो बिल्कुल हम कहेंगे. स्पेशल थैंक्स तो हमारे जेसी भाइयों को जिन्होंने हम सबको एक पूरा 24 घंटे अपने लिए दिए, है ना? एग्जैक्टली. थैंक यू राधिका. मैं कर्मा टीम को भी थैंक यू कहना चाहती हूँ जिन्होंने बिग बॉस टीम को इनवाइट करके और हमें ये मौका दिया कि हम अपने विचार आपके सामने रख पाएं. थैंक यू सो मच. थैंक यू राधिका. थैंक यू. थैंक यू. On the occasion of Mother's Day, JCRET Wing donated 7 stretchers and an amount of 51,000 rupees to a cancer patient at Hallett Hospital. The event was funded partially by the chapter and our JCRETs contributed wholeheartedly towards the cause. A little hand of help towards saving someone's life. That is what a mother signifies. JCRET Akanksha Jain was the project director for the event. माँ कहती है मजबूत बनो, अपने काम खुद करो, पर छोटी खुशियाँ पंख लगाकर थोड़ी ना आती है. रुको, थमो और अपनी सीढ़ी खुद बनो. कुछ रिश्ते होते हैं हमेशा के लिए. के कंटेनर्स, वही पुराना साथी. The Jordar venue of the uber luxurious Insignia Hall at Inox Z Square became the talk of the town when JCI Kanpur hosted its movie show there. JCI Manish Agarwal and JCI Chetan Thakkar were the PDs of the event. Ranveer Singh starrer Jayesh Bhai Jordar entertained us in 3 slots back to back. Not all together, but very much together. JJ Wing chairperson JCRET Shalini Agarwal planned and executed a perfect summer evening for our JCLITs in the form of pool party at Kanpur Club on 1st June. Our teenage kids as well as toddlers who were accompanied by their moms chilled out in the pool. Splash, splash, splash. Kids couldn't have been happier. हम कौन हैं, हमारा क्या परिचय है, इन सब का एक ही जवाब है. हमारे जन्मदाता, वो अगर ना होते तो हम ना होते. माता ने 9 महीने गर्भ में रखकर कितना कष्ट सहा, और जब जन्म हुआ तो बधाइयाँ भी बांटी. माँ ने हमारा लालन पालन किया तो वहीं पिता ने अपने खून पसीने की कमाई से हमारा भरण पोषण किया, शिक्षा दिलवाई
और मार्गदर्शक बनकर हमको सही राह पर चलना सिखाया। इस लायक बनाया कि भविष्य में बड़ा होकर हम स्वनिर्भर हो सके और उनका नाम रोशन कर सके। ऐसे हमारे पिता के लिए कुछ लाइनें मैंने लिखी हैं जो मुझे लगता है ज़रूर आपके दिल की भी आवाज़ें होंगी अपने पिता के लिए। समर्पित हैं वो लाइनें अपने पिता के लिए आपके समक्ष। प्यार का सागर ले आते, फिर चाहे हम कुछ ना कह पाते, बिन बोले ही समझ जाते, दुख सुख के हर कोने में खड़ा उनको पहले से पाया। छोटी सी उंगली पकड़कर चलना उन्होंने सिखाया। जीवन के हर पहलू को अपने अनुभव से बतलाया। हमारी हर उलझन को उन्होंने अपना दुख समझ सुलझाया। दूर रहकर भी हमेशा प्यार हम पर बरसाया। एक छोटी सी आहट से मेरा साया पहचाना। मेरी हर सिसकियों में अपनी आँखों को भिगोया। आशीर्वाद उनका हमेशा हमने पाया। मेरी हर खुशी को पहले उन्होंने जाना। असमंजस के पलों में अपना विश्वास दिलाया। उनके इस विश्वास को मैंने अपना आत्मविश्वास बनाया। मेरे पिता से बढ़कर कोई प्यार न पाया, कोई प्यार न पाया, कोई प्यार न पाया। थैंक यू। हम नहीं तोड़ेंगे, तोड़ेंगे दम मगर तेरा साथ ना छोड़ेंगे। अरे वाह भाभी, इतना सुरीला गाना। आज क्या बात है, आज दोस्ती का मूड कहाँ से आ गया? हाँ, क्योंकि दोस्ती का दिन नजदीक आ रहा है और अपने इस नए दोस्त के साथ अपने कुछ पुराने दोस्त भी बहुत जोर से याद आ रहे हैं। सही बात है, दोस्ती की है, निभानी तो पड़ेगी ही। बिल्कुल बिल्कुल। Friendship is the purest emotion on the earth. God says, I gave you family, but you choose your friends on your own. That is why they are special. Our chapter has also been successful in bringing a few best friends forever. है ना भाभी? बिल्कुल, definitely. There are many friends जो बहुत पक्की दोस्ती है, चड्डी बड्डी यार है। Seriously, अब हम लाते हैं आपके सामने एक ऐसे ही सेट ऑफ फ्रेंड्स को। देखिए वो आपसे क्या कहते हैं। ये बिल्कुल मिलते हैं अपने चैप्टर के चड्डी बड्डी यारों से। दोस्त शब्द का अर्थ भी क्या खूब है। जो हमारे दोषों को अस्त कर दे वही दोस्त होता है। दोस्ती हमारे जीवन में बहुत ही अहम किरदार निभाती है। हमें एक ऐसे इंसान की ज़रूरत होती है जिसके साथ हम अपने हर मन की हर बात, हर पीड़ा और हर सुख को बांट सकें। बाकी सब रिश्ते तो हमें जन्म के साथ ही मिल जाते हैं, दोस्ती ही ऐसा रिश्ता है जिसे हम स्वयं अपने लिए चुनते हैं। हाय फ्रेंड्स, दिस इज़ मोनिका अग्रवाल, दिस इज़ रश्मि गोयल, द बेस्ट फ्रेंड्स फॉर एवर। तो आइए आप सभी अपनी उन खट्टी मीठी यादों को हमारे साथ बांटिए। जो यादें आज एक भूली बिसरी यादें बनकर समय की व्यस्तता के कारण कहीं धुंधला सी गई हैं, कर्मा आपको मौका दे रहा है अपनी उन्हीं यादों को अपने उसी यार के साथ जीने का। So send high your vibrations, send your videos, reels for next Karma edition, which is Friendship Day special. Looking forward for your precious moments with your BFF or Chaddy Buddy. Thank you. तेरी आँखों का साहिल है, तेरे दिल के ही काबिल, तुम
अनुभव कहता है, मयूर जोश कच्ची घानी मस्टर्ड ऑयल है 100% प्योर, सेहत से भरपूर असली कच्ची घानी सरसों का तेल। मयूर जोश कच्ची घानी मस्टर्ड ऑयल, भरोसा सेहतमंद कल का।